इंडस्ट्री अभी थोड़ा डेटा फोकस होती जा रही है, जैसे कि AIML हो गया, फिर डेटा साइंटिस्ट हो गया, या फिर जो डेटा लेट। बट ऐसा नहीं कि गिटहब की जगह गिटलैब यूज़ कर रहे हैं, दोनों मतलब सेम ही होता है, थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए है कि वो थोड़ा इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग उसको, गिटलैब को। बट 2024 पास आउट हूँ, अभी फिजिक्स वाला मैं SD हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर। और This repo is now online. Anyone who visited this, like who wants to visit this website, can see this whole notes.txt as they want. ये वर्किंग डायरेक्टरी है, इसमें हम जो वर्क स्पेस है इसमें फाइल्स को हम क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और मैनेज करते हैं। ये देखिए, मैम ने जो भी फाइल्स यहाँ पर ऐड करी रहेंगी वो भी मुझे शो होंगी। अब अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं यहाँ से डायरेक्टली कर सकता हूँ, या फिर उससे भी बेहतर तरीका ये है कि मैं उसे क्लोन कर लूँ। So what we all offer, we offer a variety of events to begin with. A 30-dinner challenge, which is an interactive way to start your coding journey. What do you expect for this webinar is we'll be covering the fundamentals of Git and GitHub. So as we can see right now, vision of our club is to foster a knowledge sharing environment in GC and other colleges from Chhattisgarh and later on wide world in India. We want to enhance the GC rapport online presence by contributing to open source projects, and we want to support students in developing their online portfolios and many much more code related and non-tech related themes as well. So the vision of our club is very broad, as we can see. Now, without wasting any more time, as we are short on time, we just have 1 hour, we'll be starting our Git and GitHub session. So let's look at this image and try to understand what this image is saying. Is there anyone from the comment section who can tell what this image is trying to say to us? Okay, well, no problem. Yeah, inconsistent management of records, sort of. Yes, that's one of the amazing thing that this meme is trying to tell. So basically, this person has created a final doc, and because there were changes to be made, the person worked on another project and created a final revision too. And later on, after many changes, the person has created multiple files of the same content and many different names. But the thing is, we have all been there, we have all seen that we are trying to create a final doc, but that is never the final doc. We have final 1, final 2, final 3, and later on, so many versions that we don't even know which version is the final one. So at the last, there is no final doc that is left. So to trying to resolve this issue and multiple issues, we have Git and GitHub. So basically, Git and GitHub is based on version control systems, VSC. What is version control system? It basically records changes to a file. Version control systems are basically used to manage the history of our code. They allow us to track changes to our files and collaborate with others. We can say that version control systems are very essential for software development. Like, let's imagine a version control system as checkpoints that we have in games. We can move to any time in the game and we can always go back to the previous checkpoint. That is same concept in software development. We have many popular VSCs like Git, Apache Subversion, Mercurial, and CVS. But today we'll be focusing on Git because this is more industry prone in current times and very easy to understand and use as well. So let's understand what is Git. Git is a version control system. As we understood right now, we are trying to record changes to our files. So how are we doing that? We are doing that using a distributed system, and it helps us track changes in our code. It not just code in any type of file we are using, and it is as we all know, and if not know, it is free and open source software that is available for Windows, Mac OS, and Linux, and it is a software, not a web based software. It is just a software that we can install in our system. So it has three main key features: that it tracks history, it supports branching and merging. We will understand what are branching and merging, and it helps in collaboration, that not just one single person, but many different people can work on that final doc that this guy from the meme was trying to create. So as we can see from this area, we have project directory, staging, Git, and Git repository. We'll be coming on to that. So these are the three states of
GitHub, or let's say Git. So there is this working directory. So this is the workspace where the files are created, modified, and managed. And there is this staging area, where a temporary area where these changes are prepared before being committed. We can think of staging area as a staging ground for files to be reviewed and approved for the next Excuse version. me, ma'am. Yes. सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट कुछ ऑडियंस में ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आप हिंदी में इन चीज़ों का एक्सप्लेन करें, तो कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा बहुत हिंदी में भी इसे एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम, विल डू दिस इन हिंदी। या तो देखो, ये वर्किंग डायरेक्टरी है। इसमें हम जो वर्क स्पेस है, इसमें फाइल्स को हम क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और मैनेज करते हैं। फिर हमको एक स्टेजिंग एरिया मिलता है, जहाँ पर हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं उनको कमिट करने से पहले, उनको फाइनल वाला पुश करने से पहले स्टेज करके रखते हैं। एंड ये समझेंगे हम आगे चल के हमारे प्रैक्टिकल लाइक प्रैक्टिकल करते हुए समझेंगे। एंड देन वी हैव दिस लोकल रिपोजिटरी, दैट इज गिट डायरेक्टरी। ये एक वर्जन कंट्रोल डेटाबेस प्रोवाइड करता है हमको हमारे ही सिस्टम पे, जहाँ पर हमारे सारे चेंजेस और कमिट्स स्टोर होते हैं। आई नो दिस डायग्राम माइट नॉट बी अंडरस्टैंडेबल फॉर ऑल ऑफ अस, बट जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब ये सारी चीज़ें हमको क्लियर हो जाएंगी कि एक्चुअली काम कैसे हो रहा है। सो लेट्स कंटिन्यू विथ अवर एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज गिटहब। सो गिटहब क्या है? एक वेब बेस्ड होस्टिंग सर्विस है गिट रिपोजिटरीज के लिए। एज वी डिस्कस कि यहाँ पर हमने अपने फाइल्स के अलग अलग वर्जन्स को समझने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का यूज़ किया, विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। बट ये सिर्फ हमारे अभी सिस्टम पे, लोकल पे ही काम। अगर हमको चाहिए कि हम अपने सारे रेपोजिटरीज, आई नो कुछ लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा रेपोजिटरी क्या है, हम समझेंगे। थिंक ऑफ रेपोजिटरी एज अ फोल्डर। विंडोज़ में जो हम अलग अलग फोल्डर्स क्रिएट करते हैं, वैसे ही अलग अलग रेपोज होते हैं। तो गिटहब जो होता है वो एक वेब बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करता है, जहाँ पर हम अपने रेपोजिटरीज को शोकेस कर सकते हैं। And there is this little fun fact. We'll be sharing this PPT in the group. We can all read from here and read the fun fact. We will not be covering that because of less time we have. And next is Git and GitHub. तो देखो, Git क्या है? फाइल मैनेजर है। ये हमारे लोकल सिस्टम पे काम करता है। एंड GitHub इज लाइक अ क्लाउड स्टोरेज। इट्स अ लाइक गूगल ड्राइव। इसको हम बोल सकते हैं एक सर्विस प्रोवाइड करता है, वेब बेस्ड सर्विस, जहाँ पर हम अपने जितनी भी फाइल्स हैं, जिनको हम बोलते हैं रेपोज या रेपोजिटरी, उनको हम शोकेस कर सकते हैं और फिर दूसरे लोग भी उन फाइल्स को देख करके उन पे चेंजेस कर सकते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। सो नेक्स्ट वी हैव व्हाई शुड वी लर्न गिट एंड गिटहब। फर्स्ट इज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। एज आई सेड कि ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री प्रोन है। अभी जितनी इंडस्ट्री में काम होता है मैक्सिमम गिट पे होता है और गिटहब पे होता है। नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन। यहाँ पर जो हमारा लास्ट फाइनल V2 रिवाइज लेटेस्ट फाइल नेम था, इसको अवॉइड कर सकते हैं। हमारा फाइल का नेम फाइनल डॉक ही रहेगा, बस उस पर हम उसी के ऊपर चेंजेस ओवरलैप कर सकते हैं। ऑल्सो ये चेंजेस ज़रूरी नहीं कोई एक ही पर्सन करे, दिस चेंजेस कैन बी डन बाय मल्टीपल पीपल, सो इट इन्हेंसेस द कोलैबोरेशन। देन ओपन सोर्स। ये ओपन सोर्स होता है। एज आई सेड कि गिटहब हमको अलाउ करता है कि हम अपनी जितनी फाइल्स है उन सबको एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म पे शोकेस कर सकें। दैट अलाउज अस टू द फॉर्मेट ऑफ ओपन सोर्स, कि दूसरे लोग भी हमारी उन फाइल्स को अपने सिस्टम में इंस्टॉल या डाउनलोड करके उन पर चेंजेस कर सकते हैं और पुश कर सकते हैं। लेट्स से मैंने कोई वेबसाइट बनाई और मैंने उसको अपने गिटहब पे डाल दिया, बट दैट वेबसाइट डज नॉट हैव अ लॉगिन पेज। नाउ अदर पर्सन सीज कि उस पर लॉगिन पेज नहीं है। The person takes the project, clones it into their own system. Let clone को हम बोल सकते हैं डाउनलोड करना, और उसको डाउनलोड करके they can create a new login page over the project that I created and push it into their own GitHub. तो अब there is a project again in the GitHub that exists with a login page. This is what is a very simple explanation of open source. And then personal growth. It helps us manage our own project very systematically. And finally, there are some commands that we'll be learning. So let's go for the practical part of the presentation that we are here for. तो let's, अगर आई होप अगर बाकी लोग भी अपने सिस्टम से ज्वाइन किए हैं तो दे कैन फॉलो अस विद इट।
Ma'am, And before if we not, begin with that, you have a question in chat. If you could check once. sure. Yes, Rahul. Can we go to the previous change if required? Yes, sure, we can. And like if it's bi-directional in time or just unidirectional. See, Rahul, it does not matter if it is bi-directional in time or unidirectional. It is, I guess, always going to be unidirectional. Let's say मैंने आज एक project बनाया at 7:23 p.m. right now, or I want to do some changes in that on 8 p.m., which I did. फिर मैंने 9, 10, 11 consecutive changes किए. So the time is always going to be unidirectional in the flow. एंड इफ़ आई वांट कि मुझको वो वाला प्रोजेक्ट वापस चाहिए जो मैंने एट दी 8 p.m. बनाया था, बिकॉज दैट वाज द मोस्ट वर्किंग प्रोजेक्ट एंड द रेस्ट ऑफ द अपडेट्स आर नॉट वर्किंग एज आई वांटेड. So I can retrack and undo the changes, and I can go back to the project I created at 8 p.m. and make it the final one, which will maybe on 12 a.m. So yes, we can go to the previous change, and the time is always going to be unidirectional. I hope I'm clear. Yes. So let's continue with our practical presentation. Let's go create a new folder. I know we're starting from where everyone can follow us. So let's create a new folder called Git demo. And using this folder, we will be opening it in the VS Code. We will be using VS Code. You can use your command prompt if you are in Windows, or terminal if you are in Linux. As we can see, Git demo में अभी कोई currently files नहीं है. Let's create a new file and call it notes. Just a second. As I said, ये सिर्फ हमारे कोड को लाइक कोड के वर्जन कंट्रोल के लिए नहीं, ये सारी चीज़ों के वर्जन कंट्रोल के लिए काम आ सकता है. लेट्स से यू आर क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन और यू आर वर्किंग ऑन अ डॉक एंड यू वांट कि उस डॉक के जितने वर्जन से सारे सेव्ड रहें. यू कैन ऑल्सो यूज गिट फॉर दैट. You can always update a new doc and put your changes there. So we have notes.txt. Let's write something like sun rises from west. I know it doesn't, but let's do that. Let's open terminal. And yeah, this very small thing I want everyone of us to know. I know this might be more for some people, but try to understand. We have two things here, PowerShell and Git Bash. PowerShell बेसिकली कमांड लाइन टूल है जो कि विंडोज़ पर बना हुआ है, एंड बैश सेम चीज़ बना है, बट दिस वर्क्स ऑन लिनक्स बेस्ड इन्वायरमेंट. तो PowerShell में कुछ ऐसे कमांड्स हैं जो कि लिनक्स बेस्ड हैं, लिनक्स बेस्ड नहीं चल सकते, लाइक लिस्ट, pwd और grep. ये सारे कमांड्स जो हैं वो गेट बैश पे चलेंगे, PowerShell पे नहीं चलते. तो आई वुड प्रिफर एवरीवन टू यूज बैश इंस्टेड ऑफ PowerShell if available. And also one most important thing, it is consistent across all operating systems. So if you're working on Windows, Linux, Mac OS, anything, this will be consistent, so you don't need to change your code based on that. So yeah, we have saved the sun rises from west, and now we will start with our presentation. What we are going to do is git init. Git init क्या करता है, ये हमारे फोल्डर को एज अ गिट रिपोजिटरी सेट कर देता है. सी इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन दिस एरिया. तो अब हमारे फोल्डर पे एक डॉट गिट एक notes.txt बन गया होगा, और ये सेव हो चुका है एज अ एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, बट वी can't see it as of now in a web based service. So now we'll do git status. गेट स्टेटस से क्या होता है, हम स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारा जो ये फोल्डर है वो कमिट हुआ है या नहीं हुआ, ये ट्रैक्ड है या नहीं है. एज वी कैन सी राइट नाउ इट्स अनट्रैक्ड. वी कैन सी इट्स इन रेड इन कलर. इफ इट वाज ट्रैक्ड इट वुड हैव बीन ग्रीन इन कलर. मीन्स कि ये जो notes.txt है वो अभी तक इस गिट डेमो नाम के फोल्डर पे ऐड एक्चुअली हुआ नहीं है. And yeah, this branch also we are in currently master branch. As we can see, we will also check कि हम branch कैसे change कर सकते हैं, how we can create new branches. Now let's say क्योंकि ये अभी तक हमारे commit में add नहीं हुआ है, we want to add this to our git repo. So we'll write git add notes.txt. See,
यहाँ पर हमने लिखा git add notes.txt, which is basically it moves the file from the working directory to the staging area. Remember we were discussing about staging area. So now it's not in our working directory, it will be in our staging area before the commit. Yeah, so let's do that. So now it's in our staging area, and if we check again git status, it's going to be green, which means the file is not tracked. So see the difference, right now the file wasn't tracked, we added it our git repository, and now the file is tracked and it is present in our git repository. Now we are going to commit it, so we'll type git commit -m, and we can also add a commit message which says add notes with let's call it, we are using a wrong direction, so wrong direction. यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर एक कमिट मैसेज डाल रहे हैं कि हमने एक नोट्स फाइल ऐड किया है जिसपे जो डायरेक्शन है वो की गलत है, और ये हम कमिट कर रहे हैं. वी आर कमिटिंग टू दिस फाइल that this file is presented by us. This is a commit message. So after committing, we have created this commit message, add notes with wrong direction. And right now, ये अभी भी किसी वेबसाइट पे दिख नहीं सकता. तो let's change it. We want to see it in a website. We want to see it in GitHub, right? So now we will go and try to add it to a website. So let's go to GitHub. I hope I'm logged in. Yes. Let's create a new repository. I know जिनके लिए GitHub नया है उनको ये layout बहुत confusing लग सकता है, but it just takes time, patience, and interest as well. So we will be creating a new repository. As I said, repository world is not a new world. Imagine this as a simple folder that we have in Windows or simple directory that we have in Linux. Let's call this new repo git demo, and let's not provide any description. We can have repo public or private, but I want it to be public for now, so you all can see it. And a readme file is also required, but let's not add it. We will keep it very simple. Just name it and create one repo. Now, because our repository does not contain anything, GitHub already हमको suggest करता है कि कैसे हम new repository command line के through बना सकते हैं, या फिर किसी existing repository को command line के through इस पे add कर सकते हैं. So let's do that. We will be copying this code. You can write it yourself as well. It says git remote add origin, and it has link or the URL of this repo that we have just created. After pressing enter, we have posted in our repository, and then we will be copying this branch -m. यहाँ पर ये -m क्या शो कर रहा है, m का मतलब होता है रीनेम करना, तो हम जो अपने ब्रांच है उसको रीनेम कर रहे हैं मेन से. Yes. So as we can see, यहाँ पर we were last time in master branch. Currently now we are in our main branch. You can easily see that using bash basically. And then finally we are using git push u origin main. See, origin क्या mean करता है word? Origin means like it is a default name that is given to our remote repository when it is linked to the local repo. So origin is the name of our local repo, and main is the name of the remote repository that we are going to push. And u -u or -u here means upstream. So it basically links our local, that is origin, to the main, that is remote repository. I know this might be a lot, but it will take some time to sink in. So now we are in main branch, and we have pushed it from origin to main. Let's check it out. Suruchi ma'am, I would like to interrupt you for once. Rahul has another question. If you could answer once. Yes. How to configure git bash and
connect with GitHub. Well, Rahul, you need to first install Git. We will be coming to that later on, and then you will have to install Git Bash, and you have to add Git Bash to your main Windows system. Like path, you have to add Git Bash to your main path. And we will be covering that part in last. Please hold on. So here, as we can see, we added, remember we added one commit message which said add nodes with wrong direction. So we have this commit message shown here, and we have our notes.t check. We have sun rises from west. I know it is wrong. We will be fixing it now. So as we can see, this repo is now online. Anyone who visited this, like who wants to visit this website, can see this whole notes.txt as they want. And अगर कोई और चाहता है तो उस पर changes भी कर सकते हैं. Yeah. So let's change the. Yeah. So let's try to change it. Sun rises from east, not west. This is a new change that we have saved. Let's try git status. See, as we can again see, notes.txt is not up to date. It is again red in color. Now we want it to be again green in color like we last checked. So we will be changing this again. Git add notes.txt. See, we did this last time, right? हमने इसको last time भी अपने git repo पे add किया था. Add simply adds it to our git repo. बट अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी फाइल्स है और उन सारी फाइल्स को हम ट्रैक कराना चाहते हैं, so we don't need to write the name of specific files. We can just type dot, and this dot will represent all the other files which are untracked in our current local repository. So we added git add dot, which will add this notes.txt to our local repo. So let's check the status. Yes, it's green in color. We are good to go. And as we can see, we are in main branch already. So we don't need to change the branch now. Let's create a new commit message, which will say git commit -m, and let's type the commit message as fix direction to east. So we are having a new commit message which says fix direction to east. Now one more thing to remind, जो commit message होता है specific तरीका होता है लिखने का. You can't write anything in the commit message. You can't write too much in the commit message. It should be concise and it should be imperative. Imperative का मतलब वो टेक्स्ट जो कि एक ऑर्डर की तरह साउंड करते हैं, जैसे कि क्लोज द डोर, ओपन द विंडो, गेट आउट फ्रॉम हियर, एक्सेट्रा. विच मीन्स कि हम यहाँ पर जो सामने वाला जो कि हमारे टेक्स्ट को या कमिट मैसेज को ऐड कर रहा होगा, उसको हम ये ऑर्डर दे रहे हैं दैट यूजिंग दिस अपडेट दे नीड टू फिक्स द डायरेक्शन टू ईस्ट. सो द कमिट मैसेज शुड ऑलवेज बी इम्पेरेटिव in nature. So now we have committed. Let's push it. So git push. Let's check. So now we will be reloading this. We have our new commit message which says fix direction to east, and we have our new text which says sun rises from east, not west. Now imagine अगर इसे मैंने अपने लोकल सिस्टम पे ट्राई किया होता तो I had notes.txt, but because my text was wrong, sun rises from west लिखा था उसमें, तो मुझको फिर एक नया फाइल बनाना पड़ता notes1.txt या notes2.txt which will say sun rises from east, not west. But let's say कि मुझे इसमें और टेक्स्ट ऐड करना है, and then I will have to create another file which says notes3.txt which will have more text. So we can see that this is what version control means. We are trying to control the version. And if I go to this history, I can actually see how I did changes to the file. So very first time I did add notes with wrong direction.
at 8 minutes ago, and then I changed it to fixed direction to east 1 minute ago. If I want, I can retrack this any of the changes and go back to any changes I wanted. I think, Rahul, your doubt would have been resolved by now. Branches. Imagine a tree. Why imagine a tree? Let's visit a tree. So in a tree, as we know कि एक root branch होता है और उसके बाकी related branches होते हैं. तो here what we know is there is this root branch that works as a main branch, and then we have different branches for different leaves and different fruits. In similar system of branches. This is main branch right now, but we can also create new branches. Let's say there is someone who wants to change nodes to txt to something else. उनको इस पर कोई और चेंजेस करना है, उनको सन के ऊपर एक पूरा ए से लिखना है, तो दे डोंट नीड टू डू चेंजेस इन दिस स्पेसिफिक ब्रांच इटसेल्फ. वो अपना एक सेपरेट ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं और उस पर वो सारा ए से या वट एवर दे वॉन्ट दे कैन राइट दैट डाउन इन दैट. Yeah, so this is what we did. We first created a local file. We created a GitHub repo. We combined both local file to that online remote GitHub repo, and then we did changes to the file. So the way this was done was, if I can write that down somewhere. Yeah, so what we did was we first edited and then we staged that edit. The stage like जो स्टेज सेक्शन होता है वो हमारे लोकल पे ही रन करता है. वो कभी भी ऑनलाइन वेब पे नहीं दिखेगा जब तक हम उसको कमिट ना कर दें. Commit basically means commitment, that we are saying that we want this change in our repo and we are committing the change to our cloud-based system, which right now we are using at GitHub. We can also use GitLab if we want, and then we are pushing it. Push means last में finally after committing to the changes, we are pushing the changes to the website where we will be seeing the changes. So these are the 4 stages that we have. We can also combine them into 3 stages, but to understand we can have 4 stages, which is edit, staged, commit and push. Also yeah, we'll be reading about other things later. In a pull, there's also one git command which says git pull, which actually is a way to pull the new changes into our local repository. So now I want कि कोई और भी इन git repo पे changes कर पाए. तो मैं settings पे जाऊँगी, which I'm still going to, and I will go to the collaborators. And because this is a public repository, it might not be much an issue. I will add people, and I know Dev, my junior, who can do amazing changes to the repository. So I will add Dev to my repo. I can use Dev's GitHub username or email ID to add him to my repo. So I will use Dev 2003. I hope I am right, Dev. Yes, I am inviting Dev to my GitHub repo so he can do his side of changes in the same repo. Yes, so now I'll be stopping my screen and Dev will be presenting you how he, as a collaborator, can do changes to the same repository. All right, good evening everyone. Now अभी तक आपने देखा होगा कि गिट बैश और गिटहब के साथ ही इंटरेक्शन किया. अब जैसे कि मैम ने मुझे एज अ कोलैबोरेटर ऐड किया है, तो अब मैं भी उनके रिपोजिटरीज में चेंजेस कर सकता हूँ. तो वो चेंजेस कैसे होंगे वो अब हम लोग इसके थ्रू करेंगे. जैसा कि आप देख सकते हैं, गिट डेस्कटॉप करके एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम लोग अपने जो भी कमांड लाइन वाली जो भी वर्जन थी हमारी, जैसे कि आपने गिट बैश में कमांड्स टाइप करके आपके गिटहब में चेंजेस. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल
मैम ने मुझे एज अ कोलैबोरेटर ऐड किया है, तो उनकी इनविटेशन को पहली बार हम लोग को एक्सेप्ट करना होगा। तो यहाँ मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पर मुझे मेल आएगा, उस इनविटेशन को मुझे एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्टेशन आया, यहाँ पर ऑथराइज होगा कि यहाँ पर कौन सा ऑथर के साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हैं। एक्सेप्ट किया मैंने इनविटेशन, और ये देखिए मैम ने जो भी फाइल्स यहाँ पर ऐड करी रहेंगी वो भी मुझे शो होंगी। अब अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं यहाँ से डायरेक्टली कर सकता हूँ, या फिर उससे भी बेहतर तरीका ये है कि मैं उसे क्लोन कर लूँ। क्लोन करने के लिए आपको यहाँ पर जो ग्रीन बटन दिख रहा है कोड का, उसको क्लिक करना है और फिर ओपन विथ गिटहब डेस्कटॉप। जब आप गिटहब डेस्कटॉप को इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अगर आप एज अ बिगनर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड या फिर कुछ भी ऐसा इंट्रो पेज दिखाई देगा। मेरे में बहुत सारी रिपॉजिटरीज ऑलरेडी हैं, इसलिए मुझे ऐसा इंटरफेस दिख रहा है। ओके, तो हम लोग पहले क्लोन करेंगे। यहाँ पर मैं ओपन विथ गिटहब डेस्कटॉप दबाऊंगा, ये होगा। और यहाँ पर अब हम लोग गिटहब डेस्कटॉप के इंटरफेस में आ गए। अब यहाँ पर क्लोन दबाना है मुझे। यहाँ पर हमारा लोकल पाथ रहेगा, इसको ऐसी ही रहने देना। ये डायरेक्टली आपको उस पाथ में एक लोकल फोल्डर की कॉपी बना के देगा। मैंने इसे क्लोन कर दिया। फिर हम लोग वहाँ चलते हैं जहाँ पर हमारा गिटहब का फोल्डर है, जो कि जनरली डॉक्यूमेंट्स में होता है। आप डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स में गिटहब करके एक फोल्डर होगा, गिटहब फोल्डर को क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं गिटहब डेमो। जैसा कि मैम ने जो रिपॉजिटरी बनाई थी उसका नाम गिटहब डेमो था, उसी नाम से एक फोल्डर क्रिएट होगा, गिटहब डेमो। ओके, इसे खोले हम। यहाँ पर देखेंगे कि जो भी फाइल्स उस रिपॉजिटरी में रहेंगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। ओके, यहाँ पर अब जो चेंजेस आपको करने हैं वो यहाँ पर आप करते जाएंगे। सपोज मैं यहाँ पर एक नई लाइन ऐड कर रहा हूँ, जैसे हेलो गिटहब। ओके, इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसे क्लोज कर दूंगा। अब वापस से अगर डेस्कटॉप में जाएंगे, गिटहब डेस्कटॉप में जाके आपको, जैसे आपके पास बहुत सारी रिपॉजिटरीज हैं, यहाँ पर जैसे मैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी रिपॉजिटरीज हैं। उसमें से आपको वो वाली रिपॉजिटरी सेलेक्ट करनी है जिसको आपको चेंज करना है, जो कि है गिटहब डेस्कटॉप। मैंने उसे सेलेक्ट किया। नाउ अब यहाँ पर दिखा रहा है कि क्या क्या चेंजेस ऑलरेडी हुआ है। ओके, तो ये जो रेड कलर में दिखा रहा है वो चेंजेस पहले के हैं, और जो ग्रीन में दिखा रहे हैं वो न्यूली मेड चेंजेस हैं। ओके, फिर यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन देना रहता है कि हमने किया क्या है। ओके, ओके, तो ये मैंने समरी डाल दी कि मैंने एक नया लाइन उसमें ऐड किया। और अगर डिटेल में डिस्क्रिप्शन डालना है तो यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम बस समरी से मूव ऑन करेंगे। ओके, तो कमिट टू मेन। अब हम लोग इसमें कमिट टू मेन करेंगे तो फिर ये जो चीज़ रहेगी वो हमारे गिटहब के वेबसाइट में चले जाएगी। उससे पहले हम लोग को यहाँ पर पुश करना होगा। जैसा हम गिट बैश में पुश कमांड का यूज़ कर रहे थे, वैसे यहाँ पर हम लोग को पुश करने के लिए इस बटन का यूज़ करना होगा। अब ये चीज़ें पुश हो रही हैं हमारे मेन वेबसाइट में। ओके, तो ये चीज़ हो गई। नाउ अब हम लोग इसको रिफ्रेश कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा समरी अब शो हो रहा है कि अब क्या चीज़ हुई है, क्या चीज़ अपडेट आया, एडेड न्यू लाइन। हाँ, ओके,
कब हुआ है? नाउ, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले ये चीज़ हो गई है। हम लोग अब ओपन करके देखेंगे। ओके, यहाँ पर हमारा जो चेंजेस हुए थे वो शो कर रहे हैं हम लोग गिट डेस्कटॉप के थ्रू काफ़ी आसानी से हम लोग फोल्डर, ओके, यहाँ पर वेबसाइट के थ्रू आप सिर्फ देख सकते हैं कि हम एक फाइल्स ही क्रिएट कर सकते हैं और फाइल्स को ही अपलोड कर सकते हैं। तो फोल्डर्स कभी कभी डालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। यहीं पर हमारा जो गिटहब डेस्कटॉप है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे कि मेरे पास एक फोल्डर है यहाँ पर, उसको मैं कॉपी करूँगा और मैं ये चाहता हूँ कि वो इस रिपॉजिटरी में वो फोल्डर आ जाए। ओके, तो मैं क्या करूँगा, उसे मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद वहीं पर जाऊँगा जहाँ पर ये लोकली मेरे कंप्यूटर में सेव्ड है। ओके, डॉक्यूमेंट्स में गया, डॉक्यूमेंट्स में गिटहब में गिट डेमो जो रिपॉजिटरी थी वहाँ, यहाँ पर ऑलरेडी मैम ने जो टेक्स्ट फाइल डाली थी वो चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है। अब मैं ये चाहता हूँ कि एक फोल्डर जो मैं ऐड किया हूँ उसमें बहुत सारी फाइल्स हैं और ये मेरा कंट्रीब्यूशन है, तो मैं चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में ये फाइल आ जाए। ओके, तो ये भी आ गया। अब हम चलते हैं, इसे पुश करना है। अब हम लोग को इस चीज़ को हमें गिटहब में डालना है, दैट इज़ वेबसाइट में ये चीज़ शो होनी चाहिए, लेकिन अभी शो नहीं होगा। हम लोग को गिटहब डेस्कटॉप में जाना है, ठीक, फिर रिफ्रेश का बटन दबाना है। रिफ्रेश हो रहा है ये। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि उस फोल्डर में जो भी फाइल्स हैं वो यहाँ पर शो हो रही होंगी। हम एक समरी डाल देंगे कि हमने क्या ऐड किया, तो हमने एक फोल्डर ऐड कर दिया है। ओके, ओके, अब हम लोग कमिट करते हैं। कमिट करना यानी कि हम लोग जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो हम लोग मतलब उसे करना ही चाहते हैं, मतलब गलती से भी मतलब बाय चांस कभी कभी गलती से हम पुश कर देते हैं, तो वो चीज़ पहले गिटहब इंश्योर करता है कि वो मेन गिटहब में शो होने से पहले आप कंफर्म हो जाए। ओके, अब हम पुश कर देंगे उस फोल्डर को। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रही है एंड इट्स डन। ओके, स्विच करेंगे, रिफ्रेश करेंगे वापस से और यहाँ देखेंगे कि हाँ, यहाँ पर हमारी जो फोल्डर हमने ऐड की है वो यहाँ पर आ गई है और उसके अंदर की फाइल्स भी आ गई। ओके, तो इस तरीके से आप एक फोल्डर को भी अपने गिटहब में डाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिटहब डेस्कटॉप। ओके, so this was my part. Thank you. I think Suraj ma'am, you can continue from here. Thank you. Yes, that was amazing, Dave. Now we look at some more other things we need to learn about Git and GitHub, and then we'll have amazing surprise left for you in the last. So let's continue with our presentation. We got to know what the Git repository is. Imagine it like a folder that we create in Windows, and it stores all project files for us. And then we have basic workflow of Git, which we have a working directory, staging area, local repo, and remote repo. We have seen this working. We have done this, so we'll be skipping this presentation. Let's come to git ignore. What is git ignore? It is a specific file that tells what specific files and folders Git should ignore. Let's say that I have some files in my system except notes.txt. Let's say I have personal notes.txt, which I don't want to be pushed into a website and let others see that. I want that thing to stay in my local system only. So I will create a file named .gitignore.
and I will put it like this. So the files that I will list in Gitignore won't be listed in the website or final push. That self.notes will be there in my system, but it won't be visited by others in website. So we can ignore files like build files, environment files, environment files.env. If anyone has worked on projects, we know what env does. We have build files like node modules or pycache file. If you have worked with Python or Node.js, we get this files, pycache or node modules, and we don't want these files to be visited to our website. So we can use Gitignore for that specific purpose, as they have amazingly explained what Git desktop does and how you can download it. Let's see right way to use Git. We have 7 ways, and there are more ways you can have. Pull before push. So basically, if Dev has done some changes, and if in my local system those changes are not visible, I will first put git pull origin main. So I will pull all the new updates that they have pushed in the main branch before I will be making my own changes in another branch or in this branch. And this actually prevents conflicts right on your code. So basically, we need to like modify red files in our working directory. We can check status before committing or adding any new file in our local or remote repository. We need to check status, how many files are tracked and how many files are untracked. We need to stage the changes. We need to write a commit message, a clear commit message basically. You can check how to write a better git commit message in this blog written by Natalia from Free Code Camp. It is available. We will share you the link so you can understand how to write a good commit message. Very similarly, when you are creating new branches, you need to have some basic rules to be followed while creating those branches. Like there are some prefixes that need to use, like feature or bug fix. So it is easier for others to understand why you have created those specific branches, for what purpose they are. So you can also get this blog from Medium. We will be sharing you the link in the presentation. And then later on, we have this other more resources to learn. Documentations are always the best way to understand anything you're trying to learn. So you have to visit Git documentation. The link is given you here. And then you have Git Learning Lab. You can visit this as well. If you want Hindi, like someone in the comments said they want to understand it in Hindi, so it is very easy. You can visit चाय और कोड. वो हिंदी में इन सबका अच्छा ट्यूटोरियल ऑलरेडी बना के रखी हैं. I think it is of 2 or 45 minutes, and in those duration, you can very easily understand how Git and GitHub work with their internal working and many more massive codes that are used in GitHub. So you can visit Traversing India, Programming with Wash, etc. And yes, so right now in this presentation itself, we have Prince Sir. Prince Sir is our college alumni, and he is currently SD in Physics Wala. He joined on 2024, and he has been inspiring us so often. So I would like to ask Prince Sir if you can explain how version control system is actually used in the industry. After Sir has explained his part of how in industry actually those things are worked, how version control is performed in the industry, we will be handling doubts. So, Sir, if you could please help us with our doubts. Thanks, Ruchi. Let me just open my camera. I think it's visible, right? Good evening. गुड इवनिंग सर. यार सभी लोग एक बार चैट में लिख दो कौन कौन से ब्रांच से हो, कौन से ईयर से हो. कुछ पता नहीं चल रहा है कि मतलब कोई दूसरे ब्रांचेस वाले हैं तो उनको थोड़ा सा अच्छे से बताना पड़ेगा. CS वाले को थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा. आई गेस सारे सेकंड या थर्ड ईयर से हैं. फोर्थ के भी कुछ कुछ है. ओके, सेकंड ईयर वाले भी हैं.
एग्जाम्स भी आने वाले हैं ना सेकंड ईयर वालों के। माइक ओपन कर सकते हैं जैसे कुछ बोलना हो, थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं, मतलब उधर से भी कुछ वॉइस आएगी तो मैं थोड़ा अच्छे से बता पाऊंगा। Definitely, sir. सेकंड ईयर, ओके ओके ठीक है। सेकंड ईयर से हैं, फोर्थ ईयर से भी हैं, थर्ड ईयर वाले भी हैं, ओके। सो मैं 2024 पास आउट हूँ, अभी फिजिक्स वाला मैं एस डी हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर, और अभी मुझे यहाँ पे 2 साल हो चुके हैं ऑलरेडी काम करते हुए, और इससे पहले भी काफ़ी इंटर्नशिप्स करी हुई मैंने। तो गिटहब इंडस्ट्री में कैसे यूज़ करते हैं, बेसिकली आपको कोड होते हैं, आपके टीम्स होते हैं, सारे एक प्रोजेक्ट पे या फिर मल्टीपल पे साथ साथ काम करते हैं, तो उसको मैनेज करना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर आप कोड लिख रहे हो, फिर आपको वो दूसरे के साथ शेयर करना है, तो आप कैसे करोगे? एक सिंपल सा मतलब कोई सॉल्यूशन अगर कोई बताए जिसको गिट नहीं पता है, फिर और कोई चीज़ नहीं पता है, उसको पता है कि मतलब कुछ फाइल पड़ी है, उसको मुझे शेयर करना है, तो कैसे शेयर कर सकते हैं? चैट बॉक्स में लिख दो अगर किसी को कुछ आइडिया आ रहा है तो। बस कोई सिंपल फाइल है, कोई टेक्स्ट फाइल, पीएनजी समझ लो, पीडीएफ भी है, कुछ भी है, वो तुम्हें शेयर करने किसी के साथ में, तो कैसे करोगे? ईमेल कर सकते हैं, राइट। और सर काफ़ी सिंपल सवाल है, तो ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, किसी को भी टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हो। बहुत सारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन आती है फाइल शेयर करने की, वो सारी यूज़ कर सकते हो। राइट राइट। तो काफ़ी सारे वेज हैं मतलब फाइल शेयर करने के। बट जब तुम प्रोजेक्ट बनाते हो और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रहे हो, तो उस केस में क्या होता है, तुमको बस फाइल शेयर करके उसको भूलना नहीं होता ना। फाइल शेयर की तुमने, उसमें तुम्हें एडिट करना पड़ेगा, जिसको तुम फाइल शेयर कर रहे हो वो उसमें कुछ अपना फीचर ऐड करेगा, नए फीचर। जैसे तो तुमने लेट से कोई सॉफ्टवेयर बनाया जो तुम्हारा कुछ प्रिंट कर रहा है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है। अब तुम वो फाइल दूसरे को भेज रहे हो और उसमें बोल रहे हो कि तुम भाई इसमें एक फॉर लूप का कोड लिख दो, या फिर कुछ मेमोरी हैंडलिंग लगा दो वहाँ पे, या फिर लूप्स के टाइप्स वहाँ पे तुम प्रिंट कर दो, है ना, एरे बना दो, एरे डिफाइन कर दो, इनपुट्स ले लो, कैसे इनपुट्स लेते हैं। तुम ये सब चीज़ चाह रहे हो कि दूसरा जो तुम जिसके साथ शेयर कर रहे हो वो ये सब चीज़ें ऐड करे उसमें, ठीक है। तो तुमने एक फाइल भेजी, फिर उसने लेट्स अगर उसने ऐड भी कर दिया, तो फिर वो तुम्हें शेयर करेगा दोबारा वो चीज़, उसने फीचर ऐड कर दिया, फिर वो तुम्हें अपनी फाइल शेयर कर रहा है। ये चीज़ें व्हाट्सएप पे फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे हो रही है ना, तुमने व्हाट्सएप किया पहले, फिर उसने तुम्हें फाइल शेयर करी। तो ऐसी चीज़ें मतलब बहुत स्केल पे काम नहीं कर सकते। ऐसे मतलब तुम काम कर रहे हो, फिर तुम छोड़ के चले गए, कोई दूसरा उस पर भी काम कर रहा है, तो इससे स्केल नहीं कर सकते ना प्रोजेक्ट्स को। तो ये सब चीज़ों को लेकर के फिर गिटहब का आइडिया आया, वर्जन कंट्रोल का आइडिया है कि इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिससे हम वर्जन कंट्रोल कर पाए। तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म है गिटहब, जो कि है गिटहब गिट बेस्ट। काफ़ी अच्छा से रुचि बताई और देव ने इस पर कॉन्ट्रीब्यूट किया कि इनका यूज़ करते हैं हम प्रोजेक्ट्स मैनेज करने के लिए और उनके वर्जनिंग के लिए, वर्जन हैंडल करने के लिए, ताकि वो मल्टीपल लोग एक साथ कंट्रीब्यूट कर पाए उस प्रोजेक्ट में, राइट। तो इसमें क्या होता है कि मतलब हम कोड अपना लोकली सेटअप करते हैं, लोकली सेटअप कर लिए, गिटहब की आईडी बनाते हैं। गिटहब से एक का डाउट था कि कैसे गिट बेस इंस्टॉल कर सकते हैं, कौन मैं स्क्रीन शेयर कर दिखा देता हूँ। मोस्ट ऑफ लोग के पास सिस्टम कौन सा है, आई गेस सब विंडोज यूज कर रहे होंगे, राइट। Sir. Yes, sir. तो तुम क्या कर सकते हो, ऐसे गिट बेस इंस्टॉल सर्च कर लेना, वहाँ पे गिट बेस क्या आ जाएगी, एक जीयूआई इंटरफेस होता है। विंडोज में एक्चुअली लाइनक्स और ये सब के जो टर्मिनल्स होते हैं वो चलते नहीं है, तो तुमको इसका इंटरफेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, जीयूआई गिटहब का। इसको तुम यहाँ पे डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना विंडोज के लिए। तुम्हारा जो भी आर्किटेक्चर होगा सिस्टम का 3264 उसके से इंस्टॉल कर लेना, और फिर तुम ऐसा एक इंटरफेस आएगा, टर्मिनल जैसा रहेगा, एकदम सिमिलर टर्मिनल जैसा रहता है, उसमें तुम इंस्टॉल कर लोगे। देन उसके बाद फिर लॉगिन करनी होती है। लॉगिन क्यों? क्योंकि तुम जो भी गिटहब पे मतलब कुछ कर रहे हो, तो तुम अपनी एक अकाउंट बनाओगे, यहाँ पे आकर के अपना एक अकाउंट सेटअप करोगे। जैसे मेरा एक अकाउंट है, देख सकते हो ये। तो ऐसा तुमको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तुम्हारी यूज़र आईडी इस तरीके से होगी, जैसे ये मेरी यूज़र आईडी है, ऐसे तुम्हारे भी एक अकाउंट होगा, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, अपने एक टर्मिनल तुमने इंस्टॉल कर लिया, यहाँ से तुम्हारे पास गिटहब पे अकाउंट हो चुका है, तो तुम इसमें अपना फिर लॉगिन करोगे, ये बैश में, गिट बैश में लॉगिन करोगे, जिससे तुम्हारा गिटहब कनेक्ट हो जाएगा। फिर तुम कुछ भी कोड चाहो तो तुम इसे पुश कर सकते हो इजीली, और तुम्हारे पास मल्टीपल रिपोजिटरीज का ऑप्शन होता है यहाँ पे। रिपोजिटरीज आर काइंड ऑफ फाइल समझ सकते हो, फोल्डर्स होते हैं बेसिकली। फोल्डर्स के अंदर तुम कुछ भी पुश कर सकते हो, जैसे फोल्डर है ये एक,
ये सारे फोल्डर्स है, तुम समझ रहे हो, ये फोल्डर है। क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा? Yes, sir. यस Yeah. सर। तो वो जो होता है वो काइंड ऑफ फोल्डर होता है। जैसे ड्राइव पे तुम्हारे पास काफी फोल्डर्स होते हैं, बट उसमें कोई दूसरा कुछ कर नहीं सकता है। फिर तुम लिंक शेयर कर सकते हो, एडिटेबल लिंक शेयर कर सकते हो, जिसमें लोग फाइल अपलोड कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम सेम फाइल पे कोई काम नहीं कर सकता ना, समझ रहे हो? तो इसलिए गिटहब होता है, उस पर तुम अलग अलग फोल्डर बना सकते हो और उसको तुम क्लोन कर सकते हो। क्लोन करना मतलब उसकी कॉपी अपने पास रख लेना और फिर तुम उसमें चेंजेस करके दोबारा भेज सकते हो कि हाँ ये चेंज मैंने कर दिया, और वहाँ पे काफी इजीली लोग देख सकते हैं कि क्या क्या किसने किसने क्या क्या चेंज किया हुआ है। काफी मतलब हाईलाइटिंग होती है वहाँ पे। और तुम जब भी कुछ नया चेंजेस करते हो तो लोग पुश करते हैं वहाँ पे, है ना। गिट पुश करना होता है, एक कमांड होती है जिससे तुमने कोड भेज रहे हो, सिंक कर रहे हो बेसिकली। जो गिटहब पे कोड है तुम्हारा और तुम्हारा जो लोकल कोड है वो सिंक करते हैं, वहाँ पर तुम कोड भेज रहे हो, है ना। तो वहाँ पे तुम गिट वो यूज कर लोगे सिंक करने के लिए, और फिर ये दूसरा फिर उसको पुल कर लेता है। तो इस तरीके से मतलब वर्जनिंग में काम होती है, लोग साथ में काम कर पाते हैं, कोलैबोरेट कर पाते हैं सेम प्रोजेक्ट पे। और इसमें इश्यूज भी आते हैं, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट होता है गिटहब पे काफी, मतलब दो लोगों ने सेम फाइल पे एक टाइम पे मतलब राइट कर दिया, दो तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना कि अगर तुम सेम फाइल पे दो लोग सेम फाइल पे कोड कर रहे हैं और सेम टाइम पे पुल भेज दिया अपना अपना कोड, तो गिटहब को समझ में आता है कि किसका कोड एक्सेप्ट करना है किसका नहीं करना है, तो फिर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो इसको रिजॉल्व भी करते हैं, लोकली भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी कर सकते हैं गिटहब पे जा करके, ठीक है। अब डाउट्स ले लेते हैं अगर किसी को कुछ डाउट हो तो। सर आई हैव अ डाउट। या सर आई वाज रीडिंग समवेयर दैट आजकल गिटहब के बजाय गिटलैब को लोग ज़्यादा Yeah. प्रेफर करते हैं इंडस्ट्री में। या Is गिटलैब that इज आल्सो देयर, बट ऐसा नहीं कि गिटहब की जगह गिटलैब यूज कर रहे हैं, दोनों मतलब सेम ही होता है, थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए है कि वो थोड़ा इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग उसको, गिटलैब को। बट जो कमांड्स होते हैं, कमांड्स में कोई डिफरेंस नहीं है, कमांड्स हम सेम ही यूज करते हैं। Yes. गिटलैब पे भी सेम ही होता है, रिपोजिटरीज होती है, वहाँ पे भी सेम कमांड्स रन होते हैं, पुल रिक्वेस्ट पुश सारी चीज़ें सेम है ऑलमोस्ट। बट ये है कि थोड़ा इंडस्ट्री में उसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। या गिटहब CLI बोल रहे हो क्या? तुम गिटहब का GUI इंटरफेस जो इंस्टॉल कर रहे हो उसमें तो तुम कमांड लाइन से लिखते हो, तो विंडोज में तो उसके बिना चलेगा ही नहीं ना, वो डायरेक्टली कमांड लाइन तो लिख नहीं सकते विंडोज में। तुमको लाइनक्स का वो सब तो मिलेगा नहीं, इन्वायरमेंट जो चाहिए होता है रन करने के लिए, उसके लिए गिट बैश ही चाहिए और उसमें तुमको फिर कमांड से लिखने हैं। बाकी जिसके पास मैक या फिर उबंटू का सिस्टम होगा, फिर जिसके सिस्टम में उबंटू होगा, वो लोग डायरेक्टली CLI से इंस्टॉल कर सकते हैं गिटहब, और उनको गिट बैश का इंटरफेस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। PPT लिंक शेयर कर देना यार, इन्हें ग्रुप पे डाल देना। डाउट्स नहीं आ रहे यार, किसी को कुछ डाउट नहीं आएगा? इतना कुछ बताया एक दिन में। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, ठीक है, आई थिंक स्लोक्स हो गए। नहीं सर, आई होप मोस्टली सबको समझ में आ चुका है। ओके ग्रेट, Thank you for joining us, sir. It was really great to host you here. थैंक यू And I hope अगर किसी और को कुछ डाउट हो तो you can definitely reach Linked profile. डेफिनेटली। Sir, I had another doubt. It's not directly related to Git and GitHub, but I just wanted your insights. Which Linux distro are more preferable in the industry? Like if I'm a Windows user and I want to switch to Linux, which one should I start with? किसी भी इंस्टॉल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सब में जो टर्मिनल होते हैं ना वो सेम ही काम करते हैं ऑलमोस्ट, टर्मिनल के कमांड सेम ही होते हैं। Yes, sir.
Rahul and others, all of your doubts have been resolved. Please give us a thumbs up or yes in the chat so we may know. सर आई हैव वन डाउट। सर अगर ये बढ़िया रहेगा कि आप ये बता दें कि अभी इस इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, तो जितने भी लाइक सेकेंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स एंड फर्स्ट ईयर, तो उनको प्रिपेयर करने के लिए अभी से एक बेनिफिट रहेगा कि इधर उधर ना भटके और जो मेन चीज़ है उस पर फोकस करे वो। इंडस्ट्री अभी थोड़ा डेटा फोकस होते जा रही है, जैसे कि AIML हो गया, फिर डेटा साइंटिस्ट हो गया, या फिर जो डेटा रिलेटेड काम होता है ना उसमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस हो रहा है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट या फिर वेब डेवलपमेंट इनकी डिमांड कम हो रही है। इनकी डिमांड भी स्टिल एट द सेम टाइम अभी परसिस्ट कर रही है और काफ़ी टाइम तक रहेगी। तो वेब डेवलपमेंट हो गया, एंड्रॉइड डेवलपमेंट हो गया, बाकी जिनको मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें भी चल रही है। जो डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा करते हैं, डिज़ाइनर्स के भी काफ़ी रोल्स होते हैं, यस सर। UI को लेकर के भी और बाकी चीज़ों को लेकर के भी, तो डिज़ाइनर्स की रिक्वायरमेंट भी है काफ़ी। सर एक डाउट था सर, लाइक मैं जब अपना कोड रिपोजिटरी में मतलब गिटहब में पुश कर रहा था, तो लाइक मेरे में कुछ दिक्कत जा रहा था गेट बैश से। तो मैंने सर डायरेक्टली उसको ना फोल्डर के थ्रू उसको पुश किया था और मैं अभी तक उसको कॉन्फ़िगर नहीं कर पाया हूँ कि लाइक मेरे सिस्टम में क्या मैं कहीं पर सर्च किया उसके बारे में, तो SSH कुछ अभी देखना है, उसमें कुछ दिक्कत आ रहा है। तो एक दूसरे वे में मैंने पुश किया था, मतलब जो भी कोड्स थे उसको डायरेक्ट मतलब लाइब्रेरीज अपने सिस्टम से पुश कर दिया था, ड्रॉप एंड डाउन करके। ड्रैग एंड ड्रॉप पे तुमने डायरेक्टली गिटहब की वेबसाइट पे जा करके। यस सर, ऐसा कर लिया था। ओके, हाँ, उसके लिए मतलब ऑप्शंस होते हैं गिटहब की वेबसाइट पे। अगर तुम जाओगे ना तो वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप का भी ऑप्शन होता है, बट वो उतना आई डोंट टेल कि तुम मतलब प्रेफर करो उसको, क्योंकि उसमें काफ़ी इशू आ सकते हैं। डायरेक्टली तुम उससे चेक नहीं कर सकते कि पहले का वर्जन क्या था, तुम अभी क्या पुश कर रहे हो। तो कमांड लाइन यूज़ करो और अपना कोई ID यूज़ करो जिसमें तुमको मतलब डिफरेंस दिख पाए कि अभी कोड क्या है, पहले क्या था, वो तुम काफ़ी इजीली चेक कर पाओगे वहाँ पे, वो ज़्यादा बेटर रहता है। बट अगर तुम एक बार एरर बता पाओगे कि एरर क्या था, इशू क्या था, तब मैं थोड़ा हेल्प कर पाऊंगा ज़्यादा अच्छे से। यस सर, मैं शेयर करूँगा सर आपको। ठीक है सर, उसमें एक एरर आता है कि लाइक वो फाइल लिमिट आ जाता है कि 13 MB या 24 MB से ज़्यादा साइज की फाइल तुम पुश नहीं कर सकते। नहीं 100 MB एक्चुअली जो गिटहब पे फाइल अपलोड करने की साइज है ना, वो 100 MB है। 100 MB से अगर ज़्यादा होती है तब वो पुश नहीं होती है, बट अगर उससे कम है तब हो जाती है। सेम प्रॉब्लम अमन मेहता को भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। आई थिंक तुम्हारा जो गिटबैश का इंटरफेस है ना, वो शायद सही से सेटअप नहीं हुआ होगा। गिटबैश तुम्हारा एक बार उसको इंस्टॉल करने के बाद फिर विंडोज़ में ना इन्वायरमेंटल लेवल में ऐड करना पड़ता है। तो एक बार तुम अगर कोई किसी का ब्लॉग देख लो या फिर डॉक्यूमेंटेशन और ठीक से देखोगे, सही से फॉलो करेगा ना, तो एक बार सेटअप हो जाएगा। यस सर। एक बार अगर ना हो तो तुम अनइंस्टॉल कर दोबारा भी सेटअप कर सकते हो। दोबारा से एक बार कोई ब्लॉग देख लेना, किसी का लिखा हुआ होगा, उसमें वो स्टेप्स प्रॉपर लिखते हैं कि क्या करना है तुम्हें। गिटबैश इंस्टॉल करने के बाद तुमको उसको इन्वायरमेंटल में ऐड करना होता है, और ये चीज़ अगर कहीं भी थोड़ा मिस आउट हो रही है तो फिर वो एरर्स आते हैं काफ़ी। यस सर, थैंक यू सर। हाँ, SH की कमांड होती है एक, SH की .sh जनरेट करने के लिए। सर यही इशू हो सकता है शायद मेरे तो तुमको गिटहब के SS टोकन में डालना होता है ताकि तुमको वहाँ पे बार-बार लॉगिन ना करना पड़े। गिटबैश इंस्टॉल करने के बाद तुम्हें लॉगिन करना होता है ना, ताकि तुम अपने अकाउंट से उसको कनेक्ट कर पाओ। बट अगर तुम डायरेक्टली अगर यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करते हो तो फिर कई बार होता है कि बार-बार तुम्हें लॉगिन करना पड़ता है वैसा। तो इसलिए SSH की जनरेट करवा के उसको गिटहब पे डाल देते हैं। एक सेक्शन होता है वहाँ पे SSH की डालने का, जिससे तुमको लॉगिन दोबारा नहीं करना पड़ता। Yes, Sir, sir. Thank you, I sir. have a small doubt. Sir, is it necessary to post the GitHub links for all our project in our resume? गिटहब के सारे प्रोजेक्ट्स डालने की जरूरत नहीं है, बट जो जिस पे तुम कॉन्फिडेंस हो कि हाँ ये तुमने मतलब काफी मेहनत करके बनाया, काफी अच्छा प्रोजेक्ट है और काफी वैल्यू ऐड कर रहा है तुम्हारे गिटहब को और तुम्हारे प्रोफाइल को, तो
उन प्रोजेक्ट्स को तुम हाईलाइट कर सकते हो रिज्यूमे में। और ऑब्वियसली तुमको गिटहब का अपने लिंक तो वहाँ डालना पड़ेगा, मतलब रिज्यूमे के अंदर, कि तुम्हारा गिटहब प्रोफाइल है, कि अगर कोई बाकी रिपोजिटरी देखना चाहता है तो हमारी गिटहब एक्टिविटी देखना चाह रहा है तो वो फिर जा सके। Yes, sir, because I have seen both types of resumes. Some have only the descriptions and some have the link also. So I was जनरली क्या होता है, लोग प्रोजेक्ट्स ऐड करते हैं और उनका लिंक भी वहाँ डाल देते हैं, बट इसके अलावा तुम्हें और क्या करना होता है, तुमको अपने गिटहब की लिंक भी वहाँ देनी होती है प्रोजेक्ट में, क्योंकि जो अगर तुम गिटहब की प्रोफाइल लिंक दे रहे हो और अगर कोई विजिट कर रहे हो और वहाँ पे देख रहा है तुम्हारी काफ़ी एक्टिविटी है, तुमने मतलब पिछले 2 साल 1.5 साल में काफ़ी काम किया हुआ है गिटहब के ऊपर भी, तो ये काफ़ी अच्छा मतलब एक वैल्यू ऐड करता है तुम्हारे प्रोफाइल में। sure, sir. Thank you so much. Yeah. I think we don't have any more doubts now. So if someone have any more doubts, they can freely ask in the CFC general group. It's time to wrap up our GitHub and Git webinar. I want to begin by thanking our speaker, Suruchi Pandey ma'am and Dev Sahu sir, for sharing their expertise today. As we conclude, I encourage you all to explore the resources provided and start experimenting with Git and GitHub on your own projects. Don't hesitate to reach out to us if you have any further questions or need any guidance. Finally, follow us all on our social media handles to stay updated. We did also love to hear your feedback on today's webinar, so please do take a moment to fill our feedback form. Thank you all once again for joining us, and we wish all of you the best in your coding journey.